انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے. یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا, اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی, ہمیشہ کے لیے رہے گی, جب تک میں زندہ ہوں رہے گی. سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں, جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. پورا جموں و کشمیر پاکستان کے نقشے کا حصہ, حکومت کا بڑا فیصلہ. پاکستان کا حتمی سیاسی اور جغرافیائی نقشہ جاری, آزاد اور مقبوضہ کشمیر, لداخ, جموں گلگت بلتستان اور فاٹا شامل. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نقشہ منزل کے حصول کے لیے پہلا قدم ہے. مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں. جب تک زندہ ہیں کشمیر کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے تصویری نمائش. بھارتی بربریت دیکھ کر مقامی شہری بھی افسردہ. 5 اگست کا بھارتی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی تھا. ہائی کمشنر نفیس زکریا کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی الگ حیثیت کے خاتمے کو 1 سال مکمل ہونے پر کل دنیا بھر میں احتجاج کی تیاریاں مکمل. برمنگھم ٹاؤن ہال کے سامنے کشمیر ڈیجیٹل مہم لانچ کر دی گئی. ڈیجیٹل وین 15 اگست تک پورے برطانیہ کا چکر لگائے گی. کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے تصاویر اور ویڈیوز نشر. نیو یارک میں پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ویبنار کا اہتمام. غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گفتگو. پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کہتے ہیں عالمی برادری کو مودی سرکار کی پالیسیوں کا نوٹس لینا ہوگا. اٹلی میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اور عوام دوست گروپ کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس. صدارت پاکستانی قونصل جنرل منظور چودھری نے کی. برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد اور چودھری پرویز اقبال لوثر نے بھارت کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کا پردہ چاک کیا. کشمیر کونسل EU کا برسلز میں بھارتی سفارتخانے کے باہر کل کشمیر کے حوالے سے بڑے مظاہرے کا اعلان. کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی مظاہرے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے. چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید کی پریس کانفرنس میں اپیل. اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے, سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کی عید ملن پارٹیوں کا سلسلہ جاری. اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت. دبئی میں مسلم لیگ نون کی تقریب میں سینیٹر چودھری تنویر, MNA احسان الحق باجوہ, زبیر گل اور دیگر شخصیات کی خصوصی شرکت. سعودی عرب میں بھی ہوائی اڈوں اور سرحدی چوکیوں پر کرونا متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے تربیت یافتہ جاسوس کتے تعینات کیے جائیں گے. نئے پروجیکٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں. تجربات میں کتوں نے غیر معمولی نتائج دیے, حکام کی تصدیق. ہوٹل پر کھانا کھائیں, آدھا بل حکومت ادا کرے گی. حکومتی پیشکش پر برطانوی شہریوں کا ریسٹورنٹس پر تانتا بن گیا. کھانے پر 50% رعایت. کھانے پینے کے شوقین شہریوں کی موجیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اشال سلیمان. میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید. اور میں ہوں رافع عوان. ناظرین, دن کی سب سے بڑی خبر سے پرائم ٹائم بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان نے بڑا فیصلہ کیا ہے. پورے جموں و کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر دیا ہے. پاکستان کا حتمی سیاسی و جغرافیائی نقشہ جاری کر دیا گیا. آزاد اور مقبوضہ کشمیر, لداخ, جموں, گلگت بلتستان اور فاٹا
नक्शे में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि नक्शा मंजिल के हुसूल के लिए पहला कदम है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। जब तक जिंदा हैं कश्मीर के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। नाज़रीन, अगर ज़मीन पर कोई जन्नत का टुकड़ा है तो वो कश्मीर है, लेकिन जालिम और जाबिर भारत के गैर कानूनी कब्जे ने जन्नत नज़ीर वादी को लहू लहान कर रखा है। 5 अगस्त 2019 को फाशिस्ट मोदी ने अपने घिनौने इक़दाम के बायस पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया है। आर्टिकल 370 और 35A के गैर कानूनी इक़दाम से वादी की हैसियत तब्दील करने की मज़मूम और घिनौनी कोशिश की गई, मगर सलाम है उन बहादुर कश्मीरियों पर जिन्होंने जबर के तमाम हथकंडे मुस्तरद कर दिए। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत वादी के हवाले से 92 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, हसीनो खूबसूरत आबशारों के झुरमट में सरसब्ज वादी कश्मीर अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार है। कश्मीर फल फूल, पौधे, चरिंद परिंद, पहाड़ों और नहरों की खूबसूरतियों से हर वक्त जगमग करता है। वादी कश्मीर में चिनार के दरख्त को शाही दरख्त के तौर पर देखा जाता है और 100 साल कबल जब ये यहाँ लाया गया, ये कश्मीर की शनाख्त का हिस्सा बन चुका है। जन्नत नज़ीर कश्मीर के सरसब्ज चिनार जो कभी अपनी वादी के हुस्न पर नाजा झूमते थे, आज खूनशाम नज़ारों में लिपटी खज़ां की चादर ओढ़े मखमूम खड़े हैं। नाज़रीन, यूँ तो मकबूजा कश्मीर में 24 मारूफ झीलें मौजूद हैं, लेकिन झील डल को श्रीनगर की खूबसूरती के हवाले से मरकजी हैसियत हासिल है। कश्मीर की सबसे बड़ी झील वुलर बांडीपुरा में वाक़ है, जिसका शुमार एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में होता है। मानसबल झील बेशुमार चश्मों के पानी पर मुश्तमिल है, जो झील की तह में वाक़ है। झरोका बाग में झील के किनारे चश्मों का फूटता पानी एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। नाजरीन, ये जन्नत नज़ीर वादी मुनफरद दिलावेज़ा मौसमों, सकाफत, जोग्राफिये और खूबसूरती के सबब दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कल लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत और मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी हुसैन अवान, बताइएगा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इस मुजाहरे के लिए क्या तैयारियाँ कर रखी हैं? जी बिल्कुल, कल 5 अगस्त को जो है वो भारतीय हाई कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। जो भारत की हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 और 35A को जो रिवोक किया गया था, उसको कल जो है वो 1 साल मुकम्मल हो रहा है। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर का जो भारतीय गासिबाना कब्ज़ा है, उसके खिलाफ बेसिकली ये मुजाहरा हो रहा है। और बरतानिया में 4 शहरों के अंदर जो है वो मुजाहरे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुजाहरा है वो भारतीय हाई कमीशन के बाहर किया जाएगा, जहाँ पर जितनी कश्मीरी तंजीमें उन्होंने इस मुजाहरे की कॉल दे रखी है, जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तानी निज़ाद, लॉर्ड्स, MPs और काउंसलर्स बड़ी तादाद के अंदर शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताऊँ कि भारतीय हाई कमीशन की जानिब से जो है वो खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी जो हायर की है कि वो जो रिकॉर्डिंग्स है तमाम हाई कमीशन के बाहर होने वाले मुजाहरे की, उसको वो रिकॉर्ड करेगी, ताकि कोई किसी किस्म का कोई वाक़या पेश आए तो वो उसको जो है वो एविडेंस के तौर पर पेश करे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आईनी भारतीय इक़दाम को कल 1 साल पूरा हो जाएगा। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए और कश्मीरियों की आवाज़ को इंटरनेशनल दुनिया तक पहुंचाने की गर्ज से बर्मिंघम सिटी सेंटर टाउन हॉल के सामने डिजिटल मुहिम लॉन्च की जा रही है। इस मुहिम के मुंतज़मीन इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम मज़ीद जानते हैं। जी आबिद।
سٹی سینٹر ٹاؤن ہال کے باہر موجود ہوں برمنگم میں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 1 سال ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کو، اور اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برٹش کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے مل کر یہاں ایک کمپین کا آغاز کیا ہے برطانیہ میں، اور اس وقت ڈیجیٹل کمپین لانچ کی جا رہی ہے۔ جو منتظمین ہیں جنہوں نے یہ کمپین لانچ کی ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور آپ کو جیسا کہ فوٹیج میں نظر آتا ہوگا کہ میرے پیچھے وہ وین بھی موجود ہے جہاں یہ ڈیجیٹل کمپین لانچ کی جا رہی ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کمپین کا کیا مقصد ہے اور اس سے کشمیریوں کی وائس کو کس قدر آگے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جدید ذرائع کو استعمال کر کے بھارت کے ظلمانہ چہرے کو ایکسپوز کیا جائے۔ اس حوالے سے آج ہم نے ڈیجیٹل کمپین کی لانچنگ سرمنی رکھی ہے۔ برمنگھم سٹی کونسل ہاؤس کے باہر سے یہ ڈیجیٹل کمپین لانچ کر رہے ہیں، نہ کہ صرف برمنگھم شہر کے اندر، لندن کے اندر اور برطانیہ بھر کے شہروں کے اندر یہ ڈیجیٹل کمپین جو وین جائے گی وہ بھارت کے ظلمانہ چہرے کو ایکسپوز کرے گی اور دنیا کو بتائے گی کہ بھارت نے 1 ملین فورسز کے ذریعے کشمیر پر جبری قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان بھارتی افواج نے وہاں پر 1989 سے 1 لاکھ کشمیریوں کا قتل کیا، انہوں نے 10,000 عورتوں کو ریپ کیا، اور یہ دنیا کو یہ بتائے گی کہ جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق ارادت نہیں ملتا وہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عوام کو، برطانوی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، وہاں مسلسل کرفیو ہے، اور لاک ڈاؤن کا ہم نے بھی یہاں تجربہ 3 ماہ کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اس مشکل ٹائم میں لوگ کیا مصیبتیں اور مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ کشمیری ہیں یا دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان پر کس قدر اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا اثر بیسیکلی جو ڈیموکریٹک معاشرے ہیں ان میں سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دلائل سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ایکشن سے صرف بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں، تاکہ جمہوری طریقے سے اور جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور اپنا رول پلے کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ آج کل کے دور میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں ڈیجیٹل کمپین کا ہونا بہت ضروری ہے ایک عرصے سے، کیونکہ لوگوں کی توجہ جب ویڈیو دیکھیں گے، تصویریں دیکھیں گے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے، تو لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے ایزیلی۔ اس لیے اس کمپین کو جاری رکھیں گے تاکہ لوگوں تک کشمیریوں کی وائس کو آسانی سے پہنچایا جا سکے۔ جی بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ اٹلی میں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اور عوام دوست گروپ کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت پاکستانی کونسل جنرل منظور چودھری نے کی۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد اور چودھری پرویز اقبال لوثر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک کیا۔ تفصیلات کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں تنویر ارشاد کی رپورٹ۔ اٹلی میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہم آواز ہو گئے۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن اٹلی اور عوام دوست گروپ کے زیر اہتمام کشمیر کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت کونسل جنرل منظور چودھری اور سرپرستی سید سجاد بخاری نے کی۔ لارڈ نذیر احمد اور چودھری پرویز اقبال بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کشمیر کانفرنس میں اٹلی کے مختلف شہروں سے پاکستانی، کشمیری، اطالوی، سکھ اور پاکستان کی سیاسی، سماجی اور کھیل کی تنظیموں کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کشمیری عوام کے حق میں اظہار یکجہتی کرتے ہوئے معصوم کشمیریوں اور کشمیر پر مسلح بھارتی فوج کے غاصبانہ فوجی قبضے کے 1 سال مکمل ہونے کی مذمت کی۔ کونسل جنرل منظور چودھری، لارڈ نذیر احمد اور چودھری پرویز اقبال نے اپنے خطاب میں کشمیر کی موجودہ حیثیت اور عالمی خاموشی پر اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا یورپ اور یورپی عوام مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی قدر کرنے والے ہیں، کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بھی قدر کی جائے۔ پاکستان کے محافظ اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی بقا اور مظلوم کشمیریوں کی آواز کی طاقت ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لارڈ نذیر احمد نے کہا پاکستان ہماری جان ہے، اس پر سب کچھ قربان ہے، ہم پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ بغیر کسی لالچ کے لڑ رہے ہیں۔ چودھری پرویز اقبال لوثر نے کہا کہ پاکستان سے محبت کریں، اس کے پرچم سے محبت کریں، مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ 72 سال پہلے یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واحد ملک پاکستان ہے
और मुझे ये फख्र है पाकिस्तानी होने पर। वाहिद पाकिस्तान मुल्क जो है ये कश्मीरियों के लिए हर प्लेटफार्म पे हर जगह पे खड़ा है। हाल में मौजूद अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, दहशतगर्द मुर्दी के नारे लगाकर माहौल को गर्माते रहे। कौंसल जनरल मंजूर चौधरी ने भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगवाए। सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन और अवाम दोस्त ग्रुप इटली चौधरी तजम्मुल हुसैन ने तमाम सियासी और समाजी और खेलों की तंजीमों के नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, इटली। लिस्बन में पाकिस्तानी पुर्तगाल इत्तेहाद कम्युनिटी ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पुर्तगाल इत्तेहाद कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए लिस्बन में यौम सियाह मनाया गया। तंजीम के सरपरस्त आला राजा जाहिद इकबाल, सदर उमर शेख और जनरल सेक्रेटरी सैयद तारिक एडवोकेट की कॉल पर शोहदाए कश्मीर के लिए खसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर तंजीम की काविशों को साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने एक वीडियो पैगाम में खराज तहसीन पेश किया। हिंदुस्तान की गलती और हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाम ने इस सारे मामले को जंग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। ये जंग शुरू करनी तो आसान है, लेकिन ये खत्म करने किसी के बस में नहीं होगी। ये खुदा न खास्ता बड़ी जंग हो सकती है, इसका फैलाव हो सकता है, ये एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। पुर्तगाल इत्तेहाद कम्युनिटी के रहनुमाओं का कहना था कि 1 साल से भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और 73 सालों से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अक़वाम आलम और पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद राजित को क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करें। कश्मीर में जो बर्बरियत और जो जुल्म सितम किया जा रहा है उसका और हम इसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं। पुर्तगाल इत्तेहाद कम्युनिटी पुर्तगाल के अंदर भी कश्मीरियों की हक़ खुद राजियत और कश्मीरियों के साथ यौम सियाह मना रही है। बहुत पुरुम्मीद हूँ अपनी मुसल्लह अफ़वाज से, हुकूमत पाकिस्तान से, जो इस काज को भरपूर तरीके से दुनिया में उजागर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। शुरा ने कहा, आज़ादी की तहरीक को कुचलने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जबकि भारतीय मजालिम पर दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, लिस्बन। तुर्क रुकन पार्लियामेंट अली शाहीन ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से खुसूसी इजहार यकजहती के लिए इस्तंबुल में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अली शाहीन ने भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। आइए देखते हैं। Today is the first anniversary year of India's annexation of Jammu and Kashmir. People of Jammu and Kashmir are living under inhuman conditions since 5th August 2019. Since a year, Jammu and Kashmir are turned into an open prison. People in Jammu and Kashmir are trying to carry on their lives under heavy Indian military lockdown, communication blackout, and with detention of over 13,000 Kashmiri people and leadership. People are unable to reach health services and food. The number of deployed Indian soldiers in the region are around 900,000. That means there is one Indian soldier for every 9 Kashmiris in the region. Our Kashmiri brothers and sisters must know that they are not alone. Children of Srinagar are the children of Ankara. Women of Kashmir Valley are the women of Anatolia. Tears of the Kashmiri mothers are the tears of Turkish mothers. Kashmir is our Çanakkale and Dardanelles. Kashmir is not alone. I salute people of Kashmir from Turkey. Long live Kashmir. Long live people of Jammu and Kashmir. Assalamu alaikum. बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूएई में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्तफ़ा मुगल की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सेनेटर चौधरी तनवीर और लीगी MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा थे। शुरा ने हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार भी किया है। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। दुबई में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुस्तफ़ा मुगल की रिहाइशगाह पर कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर के साथ ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खसूसी सेनेटर चौधरी तनवीर खान, MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल समेत पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की।
ईद मिलन पार्टी के मेजबान उम्मीदवार बराए सदर मुस्लिम लीग नून UAE मुस्तफ़ा मुगल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलदस्ते पेश किए। इस मौका पर चौधरी तनवीर खान ने कहा, मजीद मुगल और मुस्तफ़ा मुगल के इसरार पर ओवरसीज में पहली बार किसी तकरीब में शरीक हुआ। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर बंदा परेशान है, मुल्क को आज मियां नवाज शरीफ की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के हालात डंकी राजा ने ऐसे नहज पर पहुँचा दिए हैं कि हर बंदा आज परेशान है। वहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होना आज की डेट में बहुत लाजमी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी जिस टाइम भी अनकरीब इलेक्शन होंगे तो मियां नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे और पाकिस्तान की एक बार फिर नए सिरे से तामीर और तरक्की करेंगे। मेहमान खसूसी MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा ने कहा, अपोजिशन मुत्तहिद है, APC इजलास के बाद हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, अब इमरान खान को जाना होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून UAE में कोई धड़ेबंदी नहीं, नए सदर और बॉडी की तश्कील के लिए सबको एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं और कोरोना की वजह से थोड़ा हम फ़र्क रख रहे थे। कोरोना अभी थोड़ा पाकिस्तान में ठीक हो गया और ईद भी गुजर गई है, अभी बहुत जल्दी APC हो जाएगी और अपोजिशन सारी मिल के इंशाल्लाह हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। और जो मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम इस वक्त पिस चुकी है, तो बुरे हालात हैं, तो हर आदमी ये कह रहा है कि इमरान खान को जाना चाहिए। इमरान खान को जो लोग लेके आए हैं अभी तो वो भी पछता रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान की, मैं नहीं देख रहा कि 2021 में कहीं PTI की गवर्नमेंट होगी, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होगी। जुबैर गुल ने कहा कि PTI ने पाकिस्तान में जो हालात बना दिए, उनका वाहिद हल है कि मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं। ये हुकूमत तो आपके सामने जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बना दिए इन्होंने कि पाकिस्तान के लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं, लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं। लोगों को इस वक्त ये हालात हैं, उनको आने वाले वक्त में भी कोई होप ही ख़त्म हो गया। इंसान की होप जब ख़त्म हो जाती है वो सिचुएशन जो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो इसका वाहिद हल यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आया जाए। सागडार जैसे लोग, इकॉनमी के जो स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों को आना चाहिए। मुस्लिम लीग रहनुमा मजीद मलिक और शौकत भट्ट ने कहा, चौधरी तनवीर खान ने UAE में पार्टी कारकुनों को पैगाम दिया है कि नाचाकियां खत्म करके एक होने की जरूरत है, मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करना होगा। जितने भी कारकुन वहाँ इकट्ठे हुए हैं और चौधरी एहसान बाजवा साहब और चौधरी तनवीर साहब, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बहुत आज खुशी का इजहार समझता हूँ कि यहाँ कारकुन और कैंडिडेट सारे इकट्ठे हैं हम लोग। राजा ज़हीर अहमद समलालवी, जमील बंगियाल, शहजाद भट्ट, महबूब रबानी, जान कादिर और दीगर का कहना था कि कायदीन की मर्जी है, वो जिसे चाहें ओहदा दें, हमारा काम पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुल्क की खिदमत करना है। आखिर में मेहमानों की ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया और मरहूम सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ के लिए दुआए मगफरत की गई। मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। होटल पर खाना खाएं, आधा बिल हुकूमत अदा करेगी। बरतानिया में लॉकडाउन की वजह से मुआशी खसारे का शिकार खाने पीने की सनत की बहाली के लिए हुकूमत बरतानिया का अनोखा इकदाम। हुकूमती फंड्स की मदद से होटलों पर खाने की कीमत में 50% कमी कर दी गई है। शहरियों ने ऐसा फ़ायदा उठाया कि होटलों में तिल धरने की जगह भी न बची। ये रिपोर्ट देखिए। रेस्टोरेंट और खाने पीने की सनत की बहाली के लिए उठाया गया बरतानवी हुकूमत का इकदाम रंग लाया। हुकूमत की माली मुआवनत से होटल्स पर खाने की कीमत 50% कम हुई तो शहरियों का जमे गफीर होटलिंग करने पहुंच गया। होटलों पर रियायती नर्ख पर खाने की फराहमी की इस मुहिम को हुकूमत ने बाहर खाएं और मदद करें का नया नाम दिया, ताकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुआशी बदहाली का शिकार होटल्स की मुआवनत की जा सके। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 500 मिलियन पाउंड की सब्सिडी दी है, जिसके तहत होटलों पर खाना खाने के लिए आने वालों का आधा हुकूमत अदा करेगी। इस स्कीम से पीर, मंगल और बुध के रोज फायदा उठाया जा सकता है। हुकूमती ऐलान के साथ हाक्समोर नामी रेस्टोरेंट ने खाने की कीमत में मजीद 10 पाउंड की कमी का ऐलान किया तो 5500 लोगों के लिए बनाया गया खाना महज 6 घंटों में चट कर लिया गया। हुकूमती सब्सिडी और होटल की रियायत पर आवाम के साथ होटल मालिकान भी खुश हैं और इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इस स्कीम से गुज़श्ता महीनों में होने वाले खसारे पर काबू पाया जा सकेगा। बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।